روزے کے بارے میں جو آگاہی دیتا ہے، ان چند لفظوں پر، ان چند باتوں پر ہم غور کریں گے کہ مسیح یسوع نے ہمارے لیے اپنے بندہ مقدس متی کی انجیل میں کیا پیغام رکھا ہے۔ ہم مقدس متی اس کا 5 باب اس کی 14، 15 اور 16 آیت کو ہم پڑھیں گے، جس میں لکھا ہے: تم دنیا کا نور ہو، جو شہر پہاڑ پر بسا ہو وہ چھپ نہیں سکتا، اور لوگ چراغ روشن کر کے پیمانے کے نیچے نہیں بلکہ چراغ دان پر رکھتے ہیں، تاکہ ان سب کو جو گھر میں ہیں روشنی پہنچائے۔ اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ خدا کا کلام پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ٹھہرے۔ عزیزو، یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتا ہے، اس نے ہم سب جو اس کے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جن کے نام کے ساتھ مسیحی لقب لگتا ہے، جو مسیح میں قائم ہے، ان کو خداوند نے مبارک کہا ہے۔ وہ دنیا کا نور ہے، اور نور اندھیرے میں چمکتا ہے۔ میں ان چند باتوں کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ آج کے وقت میں، آج کل کے دور میں لوگ اپنے آپ کو کم تر سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کیا ہم آنے والے وقتوں میں آگے بڑھ پائیں گے؟ کیا ہم اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں؟ ان کی اچھی پرورش کر سکتے ہیں؟ کیا ہم ان کو اچھے مقام پر پہنچا سکتے ہیں؟ مگر خدا کا کلام یہاں پر واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو، اور عزیزو، جو دنیا کا نور ہے وہ دنیا کو روشن کرتا ہے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں، التجاؤں میں جب بھی ہم خدا کے حضور جھکتے ہیں تو خداوند کے حضور سب سے پہلے اس مقصد کو رکھنا چاہیے کہ اے خداوند، ہم اپنی اولاد کو تیرے حضوری میں دیتے ہیں، تیری پناہ میں دیتے ہیں، چونکہ یہ بڑھ کر جیسے جیسے قد و قامت میں بڑھتے جائیں، خون و گوشت میں بڑھتے جائیں، خداوند تیرے نام کو جلال دیتے جائیں۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، جب ہم اپنی اولاد پر لعنت کرتے ہیں، جب ہم اپنی اولاد کو برا بھلا کہتے ہیں، تو اسی وقت ہماری اولاد کے لیے یہ لقب جو ہے وہ لگ جاتا ہے۔ مگر خدا کا کلام نے بیان کیا ہے کہ تم دنیا کا نور ہو۔ خدا کے کلام میں خداوند نے واضح طور پر اس بات کو بیان کیا ہے کہ تم کیا ہو؟ دنیا کا نور ہو، اور نور ہمیشہ تاریکی میں چمکتا ہے۔ اگر ہمارے باوجداد، اگر ہمارے بڑے بزرگ اگر اندھیرے میں ہیں، تو ہماری اولاد جو ہے وہ جیسے جیسے پرورش پائے گی وہ دنیا کا نور بن جائے گی، اور چراغ کبھی بھی اندھیرے کو ٹکنے نہیں دیتا۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، جب ہم روزہ رکھیں تو ہمیں چاہیے کہ ہمارے لیے مین اہم مقصد جو ہونا چاہیے وہ ہمارے گھرانوں کے لیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ خداوند مجھے جائیداد چاہیے،
खुदावन मुझे अच्छी सेहत चाहिए, खुदावन मुझे नौकरी चाहिए, कामकाज चाहिए, हमें रिज़्क़ चाहिए। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो इंसान खुदा से मांगता है। और खुदावन से मांगना किस तरह से है? हम खुदा के कलाम में बहुत जगहों पर इस अल्फाज को बयान सुनते हैं कि खुदावन पर ईमान रखो और वो तुझे अता करेगा। और जब खुदावन हमें ये मौका फराहम करता है, वक्त देता है कि हम खुदा के हजूर में झुके और खुदावन से सबसे पहले हम अपने घर के लिए बरकत मांगे। जब हम अपने घराने के लिए बरकत को मांगते हैं तो खुदावन जब हमारे घराने को बरकत बख्शता है और हमारे घराने में जो हमारे छोटे बच्चे हैं वो खुदा के जलाल में पढ़ते हैं और खुदावन अपना पाक रूह उन पर नाज़िल करता है। और जैसे ही अपना पाक रूह उन पर नाज़िल करता है और वो बच्चे जैसे बड़े होते हैं उन पर खुदा का कलाम ज़ाहिर होता है, खुदा का कलमा ज़ाहिर होता है और वही बच्चे जो है अपने माँ बाप के लिए रोशनी बनते हैं, खुदा के कलाम को लेकर आगे बढ़ते हैं और माँ बाप का नाम रोशन करते हैं। और खुदा का कलाम बयान करता है और तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद होगी। और उसी वक्त खुदावंद की तमजीद होगी जब हम यहाँ पर बैठकर अपने खुदावंद अपने खुदा की तमजीद करेंगे और आसमान पर लाखों गण फरिश्ते जो है खुदावंद की तमजीद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अजीजों, खुदा का कलाम हमारे लिए आजमाइश के बारे में चंद अल्फाज बयान करता है। हम सबसे पहले देखेंगे कि खुदावन ने रोज़े के लिए हमारे लिए क्या अल्फाज बयान किए हैं। हम मुकद्दस मत्ती उसका 6 बाब उसकी 16, 17 और 18 आयत पर गौर करेंगे जिसमें लिखा है, और जब तुम रोजा रखो तो रयाकारों की मानद अपना चेहरा उदास न बनाओ, क्योंकि वो मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उन्हें रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। लेकिन जब तू रोजे रखे सर पर तेल लगा और मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोजादार जाने, और तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। अजीजों, खुदावन का कलाम हमें रोजे के बारे में इक़्तिदार बताता है, इंतजाम बताता है कि हमें रोजा रखकर अपने जिस्म को किस तरह से संभालना है। हमने अपना मुंह नहीं बिगाड़ना, क्योंकि जब हम मुंह बिगाड़ते हैं तो रोजा जो है वो अपने आप को, अपनी ब्लेसिंग को, अपनी बरकत को छुपा लेता है। हालेलुया। जब खुदावन ने सच कहा है कि वो अपना अजर पा चुका है, हमेशा वो शख्स जो है उसी वक्त अपना अजर पा लेता है जो दूसरों पर बयान करता है, अपने रोजे को बयान करने लग जाता है या हर किसी पर बयान करता है, मैंने इतना वक्त खुदा पर बयान किया, मैंने इतना वक्त गुजारा, इतनी वर्षिप की, इतनी प्रस्तिश की, मगर खुदावन वक्त को नहीं दिल को देखता है, आपके मुंह के अल्फाजों को सुनता और आपकी आंखों की पाकीज़गी को देखता है, क्योंकि वही खुदा इकलौता खुदावंद है जो हर किसी के अंदर रूह की सूरत में मौजूद है। वो हमें दर्श देता है कि रयाकारों की तरह नहीं बल्कि पोशीदगी में दुआ करो, क्योंकि खुदावंद तुम्हारा खुदा पोशीदा है। अजीजों, जब हम अक्सर दुआ कर रहे हैं, चर्च में जाते हैं तो चर्च में दुआ करके फौरी तौर पर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर जब खुदा के हजूर हम दुआ कर रहे हैं, हम खुदा को अपना वक्त दे रहे हैं, खुदा के हजूर अपने मुनाजात को रख रहे हैं, मगर खुदावन ने जब वो सब कुछ सुन लिया और जब उसने उसके इवज़ बरकत देनी होती है, उस वक्त हम उठकर अपने घरों को चले जाते हैं। उस वक्त हम मुड़कर भी देखते, फिर हम जाके घरों में कहते हैं कि खुदावन मेरा ये जो काम था वो पूरा नहीं हुआ, मैंने इतनी दुआएं की, मगर खुदा
उनसे कहता है कि तूने जब वक्त था मुझसे मुंह फेर लिया। हमें जब हम खुदा के हजूर में छूते हैं, उसका कलाम सुन रहे होते हैं, जब हम चर्च में होते हैं या कहीं पर भी खुदा का मसबा लग जाता है, उस जगह पर खुदा का पाक रूह मौजूद होता है, क्योंकि उसने कलाम मुकद्दस में बयान किया है, जहां 2 या 3 मिलकर मेरा नाम लेंगे मैं वहां पर मौजूद होऊंगा। और जब वो वहां पर मौजूद है तो हम फौरी तौर पर घर की परेशानियों को लेकर खुदा के हजूर में अपने मुनाजात को रख के दौड़ जाते हैं, खुदावन से बरकत लेना भूल जाते हैं। हम किस तरह से खुदा से बरकत लेंगे? खुदावन बयान करता है कि तेरा बाप जो खुशीशी में है वो तुम्हारी आवाज तुम्हारी बात को सुनेगा। खुशीशी में वो उस वक्त बैठा है जब चर्च लगा है या मसबा लगा हुआ है, उस वक्त हमने अपने तमाम मुनाजात उसके ऊपर रख दी है, उसके हुजूर रख दिया, अपने आप को रख दिया है। मगर जब उसने ब्लेसिंग देनी है तो हर किसी के अमल को देखकर, हर किसी के अमाल को देखकर उसने उसको ब्लेसिंग देनी है। जिस तरह से उसकी दुआ होगी उसी तरह से वो ब्लेसिंग देगा। हालेलुया। अब बात करते हैं आजमाइश पर। अजीजों, जब हम रोजा रखते हैं तो एक टाइम ऐसा आता है कि हम कहते हैं कि हमें रोजा लगने लग गया है। जब रोजा हमें तकलीफ देने लग जाता है, परेशान करने लग जाता है, तो इंसान बार बार पानी के बारे में सोचता है, खाने के बारे में सोचता है। मगर जो खुदावन के लिए रखते हैं, खुदावन अपने रोजे को रखने से पहले खुदावन के हजूर में अपनी मिन्नत करते हैं, उससे कुव्वत मांगते हैं। तो अजीजों, तब तक जब तक के रोजा खोलना जाए, जब तक कभी भी इब्लीस आपको नहीं सताएगा। ये एक चीज, एक बात आजमाई हुई है। जब मसीह खुदावन यीशु मसीह ने जब रोजा रखा तो कितने दिन का रखा था? उसने जब 40 दिन के बाद जब उसने लिखा है कि रोजा रख लिया, तो जब वो रूह कुदस से भर गया तो रूह कुदस उसको बयाबान में ले गया। कहाँ ले गया? बयाबान में, यानी जंगल में ले गया। और वहां पर जाकर उसने उसको अकेला छोड़ दिया, पाक रूह को उसमें से निकाल लिया, उठा लिया। और वहां पर सिर्फ यीशु था और वो खाली इंसानी जिस्म था। उसने उस वक्त अपने आप को अकेला महसूस नहीं किया, क्योंकि जब हम दुआ करते हैं, खुदा का कलाम पढ़ते हैं, हमारे अंदर मौजूद होना चाहिए। हमें उन अल्फाजों पर अमल करना चाहिए जो अल्फाज कलाम मुकद्दस में मिलते हैं। अब उस वक्त जब खुदावन यीशु मसीह को बयाबान में छोड़ दिया गया और वहां पर इब्लीस आता है, तो वो उसको कहता है, अगर तुम खुदा का बेटा है तो इन पत्थरों को बोल कि ये रोटी बन जाए। और यीशु ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी और पानी से नहीं, बल्कि हर एक उस कलमे से, खुदा के कलाम से, हर एक उस बात से जो उसके मुंह से निकली है, वो जीता रहेगा। हालेलुया। ये खुदावन ने जिंदा मिसाल दे दी है, खुदावन ने एक तर्ज तरीका दे दिया है। और उसने कहा कि जब भी तू रोजा रखना, रयाकारों की तरह नहीं, मुंह ना बिगाड़ना, बल्कि खुदावन को याद करना। अजीजों, रोजा हमें गुनाह से बचाता है। रोजा बहुत सारी ऐसी चीजों से हमें बचाता है जो हमें मौत की तरफ लेकर चलती है। मगर फिर जब यीशु ने ये अल्फाज बयान कर दिए, उस वक्त शैतान ने कहा कि ये अभी भी नहीं डगमगाया। उसने कहा, अगर तू मुझे सजदा करे तो ये दुनिया की शान और शौकत जो मेरे अख्तियार में है, वो सब मैं तुझे दे दूंगा। और उसने कहा कि ऐसा लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा के हजूर सजदा करना। तो इसी वक्त इब्लीस फिर से सोच में पड़ गया। वो सोचने लग गया कि मैंने ये मरहला भी दे दिया है, अब मैं क्या करूं? कौन से ऐसा अल्फाज दूं कि ये जिस्म जो है उसमें फंस जाए। इब्लीस को पाक रूह नजर नहीं आ रहा था, उसमें वो जिस्म नजर आ रहा था उस वक्त।
اس کو پتا تھا کہ اس وقت پاک روح اس پر نہیں ہے، یہ خالی ہے، اس لیے اس کے پاس آ گیا اور اس کے ساتھ بات کرنے لگ گیا۔ مگر یسوع نے ذرا بھی اپنے آپ کو ڈگمگانے نہیں دیا، کیونکہ اس کے اندر خدا کا کلام موجود تھا۔ اس وقت یسوع نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں پھر سے روزے رکھ کر آؤں، پھر آ کر ابلیس کے ساتھ مقابلہ کروں۔ اس نے وہی کلام جو اس کے اندر تھا وہی کلام بیان کیا۔ جب ہم خدا کے کلام کو پڑھتے سنتے، اس کو اپنے اندر رکھتے ہیں، اپنے دل میں رکھتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ اسی وقت جب مصیبت پڑتی ہے خدا کے کلام کو بیان کرے اور وہ مصیبت ٹل جائے گی۔ پھر اسی وقت ابلیس نے کیا کہا؟ اس کو اونچے ٹھنگرے پر لے گیا تو اس نے اسی وقت کہا اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو اپنے آپ کو یہاں سے نیچے گرا دے۔ کیوں اس نے کہا؟ کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا یہی خدا کا بیٹا ہے۔ اس نے کہا کہ اس نے تیری بابت اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہے کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں پر اٹھا لیں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں کو پتھر سے چوٹ لگ جائے، ٹھیس لگ جائے۔ اب وہ اس بات کو جانتا تھا، اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے۔ اب وہ اس بات کو جانتا تھا کہ خداوند کبھی بھی اس جسم کو ٹھیس نہیں پہنچنے دے گا۔ عزیزوں، خداوند ہمیں گناہ سے روکتا ہے۔ اس نے کہا کلام مقدس زبور 91 میں اس بات کو بیان کیا ہے کہ اس نے اپنے فرشتوں کو تیری بابت حکم دیا ہے کہ وہ تجھے اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیں گے۔ پاؤں پر ٹھیس لگنے کا مطلب وہ گناہ ہے جو ہم قدم پر قدم کرتے ہیں، وقت پر وقت ہم گناہ کرتے ہیں۔ ہم اس گناہ کو بچنے کے لیے، ہمیں بچانے کے لیے خدا کے فرشتے وہاں پر ہمارے آس اور پاس موجود ہوتے ہیں، وہ ہمیں آگاہی دیتے رہتے ہیں۔ یسوع نے اس وقت کیا کہا کہ چلا جا یہاں سے، اور ابلیس وہاں سے چلا گیا۔ اس وقت یسوع نے اس کے ساتھ بحث نہیں کی، کیونکہ جب بحث و تکرار اس انسان کے ساتھ کرتا ہے، اس شخصیت کے ساتھ کی جاتی ہے جس کے پاس خدا کا کلام ادھورا کلام ہے، اور جب اس کے ساتھ بحث کی جاتی ہے تو آپ کا مزہ، آپ کی بلیسنگ چلی جائے گی۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس انپڑھ اور جاہل کے ساتھ بات مت کر جس کو کلام کے بارے میں علم نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس نے بحث و تکرار کی وجہ سے تیرے پاس جو خدا کا علم ہے، جو رات دن ایک کر کے روزے رکھ کے کلام پڑھ کے تم نے حاصل کیا ہے، وہ تجھ سے جاتا نہ رہے، کہیں تو گناہ میں نہ پھنس جائے، تو کہیں تو تحش میں آ جائے، غصے میں آ جائے، انسان ہے غصے میں آ جائے اور گناہ نہ کر بیٹھے، اسی لیے تنقید کر اور وہاں سے چل رہا، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں تو بھی گناہ میں پھنس جائے۔ اس وقت یسوع نے اس کے ساتھ بحث نہیں کی، بحث و تکرار نہیں کیا، اور خدا کے کلام میں بڑی خوبصورت بات کو بیان کیا گیا ہے۔ آخر میں اس نے کہا تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر اور صرف اسی کی عبادت کر۔ تب شیطان اسے چھوڑ کر چلا گیا، اور دیکھو فرشتے آ کر اس کی خدمت کرنے لگ گئے، اس کو کھانے کے لیے دینے لگ گئے، آسمان کے کھانے اس کے لیے اترنے لگ گئے، اس کے لیے دسترخوان بچھ گئے، اور اس کا جسم بھی سیراب ہوا، اس کی روح بھی سیراب ہوئی۔ یہ وہ خدا کا کلمہ ہے جو اس نے بیان کیا تھا، اور جو خدا کے کلمہ اس کے اندر موجود تھا، جو اس نے اس دشمن پر بیان کر دیا تھا، اور خدا کے حضور سے فرشتے جو اس کے لیے کھانا لے کر آئے تھے، وہ یہ کلام تھا، وہ یہ کلمہ تھا جو ہمارے درمیان موجود تھا، اور آج روح کی صورت میں ہمارے درمیان موجود ہے، اور وہی کلمہ ہماری روح کو سیراب کرتا ہے، ہمارے جسم کو بحال کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ آج اگر ہم تھک جاتے ہیں، آج
आज हम जब रोजे में कमजोर होते हैं तो इस बात को भूल जाते हैं कि खुदावंद ने कलाम मुकद्दस में कहा है कि जब तू कमजोर होगा तो मैं तेरे करीब होऊंगा। इंसान इस बात को भूलकर वो खाने की तरफ जाता है, वो पानी की तरफ जाता है, लोगों के पास भीख मांगने लग जाता है, तो फिर पैसे की लालच करता है, मगर खुदा के इस कलाम की तरफ नहीं देखता। कि उसने कहा है खुदावंद अपने खुदा की इबादत कर, वो तेरे दरमियान में से बीमारी को निकाल देगा, वो तेरी रोटी और पानी पर बरकत देगा। इंसान इन आयात को भूल जाता है, उस कलमे को जो खुदा के मुंह से निकला है उसको भूलकर, खुदा को छोड़कर उसको भूल जाता है और इंसानों के पीछे चलने लग जाता है। मगर सीजो खुदा का कलाम बयान करता है, मलऊन है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कुल रखता है। वो खुदावंद अपने खुदा की इबादत करो, वो तेरे दरमियान में से बीमारियों को निकाल देगा, तेरे घराने में से महामारी को निकाल देगा, तेरे कबीले को सरबुलंद करेगा। हालेलुया। ये है खुदा का कलाम, खुदा का कलमा। और आज जब हमारे लिए कुर्बानी का वक्त आता है, हम शाम से लेकर अगली शाम तक जब रोजा रखते हैं, इसके लिए भी खुदावंद ने कलाम मुकद्दस में तरह तरह के वसाइल पैदा किए हैं, तौर तरीके बताए हैं, ताकि हम हमारी जान में कोई तकलीफ ना आए, हम हमेशा खुदा में कायम रहे। और खुदावंद ने हमें रोजे के अयाम बख्शे और उसके दुखों में शुमार होने के लिए हम उस वक्त को याद करते हैं कि जो खुदावंद हमारे खुदा ने हमारे लिए दुख उठाए। हालेलुया। आज जब हम अजीजों अपने मसीह यीशु की जिंदगी पर गौर करते हैं तो उसने हमारी खातिर सलीबी मौत को बर्दाश्त किया। उसने ये हरगिज़ नहीं सोचा कि किस तरह से मुझे मारेंगे, उसने ये नहीं सोचा कत्ल कैसे करेंगे, उसने सब कुछ अपना आप दे दिया। ये थी आजमाइश, उसने अपने बेटे को भी आजमाइश के लिए छोड़ दिया। किसके लिए? मेरे और आप सबके लिए उसने अपने इकलौते बेटे को आजमाइश के लिए छोड़ दिया, कुर्बान कर दिया। आज जब हम रोजा रखते हैं तो जब रोजे का वक्त करीब आता है तो इंसान को गुस्सा आने लग जाता है। कभी महसूस किया इस बात, जब रोजा रखता है तो आखिरी टाइम में या तो कोई ऐसी बात हो जाएगी जिसकी वजह से झगड़ा होने लग जाएगा, इंसान को गुस्सा आने लग जाएगा। अगर आपको गुस्सा आने लग गया है, झगड़ा होने लग गया है, तो इस बात को अपने जहन में, अपने दिल में बैठा लें कि दुश्मन अगर आपके पास आ चुका है तो इसका मतलब जब आप उस दुश्मन को हरा देंगे तो बड़ी बरकत आपको मिलने वाली है। हालेलुया। हमेशा ऐसा तब होता है जब आपका रोजा, आपकी कुर्बानी खुदा के हुजूर में कबूल हुई है। मगर कुछ लोग क्या करते हैं, रोजे का टाइम करीब आता है, वो गाली गलौज करने लग जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, कुछ ऐसा कर बैठते हैं जिसकी वजह से रोजा तो उनका बरकरार होता है लेकिन उसकी ब्लेसिंग, उसकी बरकत जो है खारिज हो जाती है। मगर जो मसीह में कायम है, जो शख्स खुदा में कायम है, वो कभी भी रोजा रख कर अपने आप को गुनाह के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि अगर मैंने ये गुनाह कर दिया तो सारा जो रोजा है वो बेकार चला जाएगा। जब भी आपको भूख सताए उसी वक्त घुटनों पर होकर खुदा से दुआ करें। इस बात को अपने ज़हन में रखें कि इंसान रोटी और पानी से नहीं बल्कि खुदा के मुंह के अल्फाजों से, उस कलाम से जिंदा रहेगा। हालेलुया। अजीजों, हम जब भी रोजा रखते हैं, आम रूटीन पर जब हम रोजा नहीं रखा होता उस वक्त हमें भूख सताने लग जाती है, बर्दाश्त नहीं होता, जिस्म कमजोर होने लग जाता है, तो कोशिश होती है कि फौरी तौर पर कुछ खाने के या पीने के लिए मिल जाए। मगर जब रोजा रखा होता है उस वक्त ये सब कुछ नहीं होता। ये हमारी आजमाई हुई बात है। जब भी हमने रोजा रखना होता है तो अपने आप को खुदा के हुजूर में दे देते हैं कि खुदावंद हमारी मदद करना,
हमें हिम्मत, ताकत और कुव्वत बख्शना कि हम इस रोजे को कंप्लीट कर सकें। और जब आप अपने तमाम मुनाजात खुदा के हजूर में रखते हैं, मकसद को रखते हैं, तो अज़ीज़ों यकीन जान कि आपके रोजा खोलने से पहले ही खुदावंद आपको मुहैया कर देता है। मगर जब हम तहश में आ जाते हैं, जब आखिरी वक्त, जब आजमाइश का वक्त होता है, उस वक्त हम जब मुंह फेर लेते हैं तो वो ब्लेसिंग जो है वापस चले जाते हैं। यहाँ पर खुदा के कलाम में क्या लिखा है कि आसमान से क्या हुआ, आसमान से देखो फरिश्तों ने आकर उसकी खिदमत की। उसने पहले जो आयत बताई थी उसमें क्या लिखा है कि तुम दुनिया का नूर हो। तो दुनिया का नूर होने का मतलब क्या है? यीशु जो है वो भी दुनिया का नूर है, वो सुबह का सितारा है। तो उसने हमें कहा कि तुम दुनिया का नूर हो। अगर उसने हमें ये कहा है तो इसका मतलब अगर हम वफादारी के साथ उसको वक्त देंगे तो हमारे लिए भी खुदा के फरिश्ते आएंगे और हमें भी बरकत देंगे और हमें भी वो खाने देंगे जो यीशु के लिए है, वो हमारे भी खिदमत करेंगे। हालेलुया। खुदा का कलाम हमें बहुत सारी इन चीजों के बारे में बताता है, मगर हम भूल जाते हैं, हमारे ज़हन से वो निकल चुकी होती है, क्योंकि जब मुसीबत सर पर आ पड़ती है तो हम खुदा के कलाम को भूल जाते हैं। अगर हम खुदा के कलाम को ठीक उसी तरह जिस तरह से यीशु ने बयान किया उसी वक्त उसको बयान करेंगे तो हमारी जिंदगी किस तरह से बहाल होगी हमें पता भी नहीं चलेगा। आज अगर हमारे घराने में अगर कोई मुसीबत या कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम आ पड़ती है तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई साहब ये बहुत दुख की बात है, ये बहुत बड़ी बात हो गई है, इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो हमारे मुंह से एक ही अल्फाज निकलता है कि खुदावन पूरा करेगा, खुदावन सब कुछ करेगा। और जब आप अपना सब कुछ खुदावन पर छोड़ देते हैं तो खुदावन वो सब कुछ करने की कुव्वत रखता है। हालेलुया। क्योंकि कलाम मुकद्दस में बहुत बड़ी ये बात खुदा का बंदा पतरस बयान करता है कि अपनी तमाम फिक्रें उस पर डाल दो, क्योंकि उसको क्या है, तुम्हारी फिक्र है। वो जानता है कि तुझे किस चीज की जरूरत है, तुझे किस वक्त क्या चाहिए, वो सब कुछ जानता है। और उसी वक्त जब हमें जरूरत पड़ती है तो खुदा अपनी जनाब से हमें अता करता है। सिर्फ ये कब देता है? जब हम ईमान रखते हैं, हम ये ईमान रखते हैं कि खुदावंद को हमारी फिक्र है, वो जानता है, क्योंकि उसने कहा है कि मैं अपने तालिब को नींद में मुहैया कर देता हूँ। और जब वो हमें नींद में मुहैया करता है और वो सारे बंधनों को तोड़कर, तमाम रुकावटों को तोड़कर वो हमें अता करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अजीजों, हमने आजमाइश में घबराना नहीं है, बल्कि खुदा का कलाम बयान करना है। उसी वक्त खुदा का कलाम पकड़े और आसमान की तरफ बुलंद करें और दुआ करें। आए हम सब अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। ऐ कदूस जिंदा आसमानी खुदावंद, आसमान और जमीन के खालिक और मालिक, तूने हमारी खातिर सलीबी मौत को बर्दाश्त किया और वही कलमा ही जो मुतजस्सद होकर हमारे दरमियान ठहरा और आज का कलाम हमें अता किया। खुदावंद, आज का कलाम हमारी जिंदगियों को रोशन करे ताकि हम दुनिया का नूर बन सके और खुदावंद हम तारीकी में चमकते रहे, लड़ाइयों में, हसद में प्यार मोहब्बत का पैगाम लेकर आए। चूंकि खुदावंद तू प्यार है, तू मोहब्बत है, तेरा कलाम अनाबदील है, तेरा कलाम अव्वल और आखिरत है और हमारे दरमियान मौजूद है। खुदावंद तू ही रहम करने वाला खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से हम सबको बरकत दे।